سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دبئی میں پاک بھارت میچ کے دوران فخر زمان کا متنازع آؤٹ پی سی بی نے آئی سی سی کو تھرڈ امپائر کی شکایت کر دی ہے اور پی سی بی نے آئی سی سی سے تھرڈ امپائر کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں تھرڈ امپائر نے فخر زمان کو غلط آؤٹ دیا تھا۔ پاک بھارت میچ میں پاکستانی اوپننگ بلے باز فخر زمان کا متنازع آؤٹ پی سی بی نے معاملہ آئی سی سی میں اٹھا دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فخر زمان کو غلط آؤٹ دینے پر آئی سی سی کو تھرڈ امپائر کی شکایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کے سامنے اس فیصلے پر احتجاج کیا، لیکن میچ ریفری نے بتایا کہ یہ معاملہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ بعد ازاں قومی ٹیم کے مینیجر نے آئی سی سی کو ای میل کے ذریعے باضابطہ شکایت درج کرائی۔ فخر زمان کو غلط آؤٹ قرار دیے جانے پر سابق کرکٹرز نے بھی تھرڈ امپائر کے فیصلے کو غلط قرار دیا۔ شائقین کرکٹ نے سوشل میڈیا پر امپائر کے فیصلے پر کہا کہ شک کا فائدہ بیٹر کو دیا جاتا ہے، جو کہ نہیں دیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا، میرے خیال میں فخر زمان کو غلط آؤٹ دیا گیا، ہمیں لگا گیند زمین پر لگی مگر فیصلہ امپائر کا ہی ہوتا ہے، اگر فخر زمان کو آؤٹ نہ دیا جاتا تو ہم 190 رنز بنا سکتے تھے۔ پاک بھارت میچ کے دوران گیند زمین کو لگنے کے بعد بھارتی کیپر کے گلوز میں گئی، جس پر تھرڈ امپائر نے فخر زمان کو آؤٹ قرار دے دیا، جس کے بعد پاکستان کی میچ میں پوزیشن متاثر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہمیں عظیم سعادت ملی، اب پاکستان بھی خود کو خادم حرمین شریفین کہہ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں اللہ پاک کا گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، ہمارے لیے پاک دھرتی ہے، دوست اور محسن ملک ہے۔ پاکستان نے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب نے کس طرح ہمارا دوست ہے، سعودی عرب ہمارا محسن ہے، سعودی عرب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، وہاں پر روضہ مبارک ہے، وہاں پر مکہ اور مدینہ ہے، وہاں پر وہ ہمارے لیے پاک دھرتی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کتنی عزت دی ہے، پاکستان کو کتنی عزت دی ہے، آپ کو سب کو مبارک ہو اس کی۔ اور آپ جانتے ہو کہ اب الحمدللہ پاکستان کے نصیب میں بھی یہ سعادت آئی کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ سکتا ہے۔ ہم جنگ جیتے تھے بیان المرصوص، میری آپ سے اس کے بعد پہلی ملاقات ہے، میں آپ سب کو شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہتی ہوں، ہمارے وزیر اعظم کا، نواز شریف صاحب کا اور عسکری قیادت کا، کہ جنہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل کے عوام کے ساتھ یہ جنگ لڑی، بھارت کو دھول چٹائی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا۔ سپریم کورٹ نے حکومتی انٹرا کورٹ اپیلوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان نے 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا اور جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس شاہد بلال نے اضافی نوٹ سے اتفاق کیا۔ عدالت کا ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا حکم، سپریم کورٹ کا اپیل کا حق دینے کے لیے 45 دن میں حکومت کو قانون سازی کا حکم۔ تحریری فیصلے کے مطابق حکومت اور پارلیمان حق اپیل کے لیے 45 دن میں قانون سازی کریں۔ آرٹیکل 175(3) فوجی عدالتوں کے وجود کی نفی نہیں کرتا۔ 5 رکنی بینچ نے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی کی تھی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی تھیں۔ مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل، سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کا آغاز، متعدد ممالک کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان متوقع۔ دنیا بھر کے رہنما عالمی مسائل پر بات چیت کے لیے نیو یارک میں جمع، امن، ترقی، ماحولیات اور انسانی حقوق اجلاس کا مرکزی ایجنڈا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف برطانیہ سے امریکہ چلے گئے، وزیر اعظم 26 ستمبر تک امریکہ میں قیام کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات شیڈول، خطے سمیت عالمی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس میں عالمی برادری کی توجہ غزہ کے سنگین بحران کی طرف دلائیں گے۔ خطاب میں کلائمیٹ چینج، دہشت گردی اور اسلام فوبیا پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔
UN सेक्रेटरी जनरल का फलस्तीन जंग रोकने पर जोर। इंसानी जानें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। यूक्रेन, फलस्तीन, अफ्रीका समेत कई खिते जंग की लपेट में हैं। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फरोग देना होगा। एंटोनियो गुतेरेस का UN सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली आलमी बहरान है, दुनिया मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। आलमी रहनुमाओं को मुनाफकत छोड़कर इंसाफ करना होगा। तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों से निजात दिलाना वक्त की ज़रूरत है। आलमी अमन का ख्वाब तभी मुमकिन है जब हम सब मुत्तहिद होंगे। फलस्तीनी मिशन को बरतानिया में सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया है। लंदन में फलस्तीनी सिफारत खाने की इमारत पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरतानिया में फलस्तीनी सफ़ीर हसाम जमलूत की जज्बाती तकरीर कहते हैं कि आएँ हम सब फलस्तीनी परचम को फ़ख्र से बुलंद करें। सयाह रंग सोग, सफ़ेद उम्मीद, सब्ज़ ज़मीन और सुर्ख कुर्बानी की नुमाइंदगी करता है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीखी नाइंसाफ़ियों की दुरुस्तगी का अमल है। फलस्तीनी अवाम इस वक्त नस्ल कुशी जैसे अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं। दुनिया को हमारी आज़ादी और इंसानी हुकूक का एहतराम करना होगा। फलस्तीनी परचम लहराना हमारे वक़ार और कुर्बानियों का आलमी एतराफ़ है। नस्ल कुशी पर दुनिया की खामोशी काबिल अफसोस और ख़तरनाक है। हमास का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास ने जंगबंदी के बदले ट्रंप से गारंटी का मुतालबा कर दिया। हमास ने खत में सदर ट्रंप से 60 रोज़ा जंगबंदी की शर्त रख दी। कहा, आधे यरगमाली छोड़ेंगे मगर जंगबंदी यकीनी बनाएं। वक्ती नहीं, बाएतमाद अमन की ज़मानत चाहिए। इंसानी बुनियादों पर अमन को यकीनी बनाया जाए। हमास ने जंगबंदी की गारंटी को अव्वलीन शर्त करार दिया। हमास का खत रवां हफ्ते ट्रंप को पहुँचाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावल नगर में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप में पैदा होने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, मुबारकबाद और बहुत सी दुआएं दी। फ्लड रिलीफ कैंप में पैदा होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरियम रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुसलसल सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इन एक्शन। वो बहावा नगर में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ कैंप पहुंची। फ्लड रिलीफ कैंप में पैदा होने वाले बच्चों की वालिदैन से मुलाकात की, मुबारकबाद और बहुत सी दुआएं दी। कैंप में पैदा होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरियम रखा गया। फ्लड रिलीफ कैंप में सनतजार मरकज का दौरा किया। सिलाई कढ़ाई करने वाली खवातीन से गुफ्तगू की, सिलाई मशीन पर कपड़े की सिलाई भी की। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, सहूलतों की फ्राहमी के बारे में। वज़ीर इत्तलात और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने ये कहा है कि बड़ी स्कीमों में मसाइल आते रहते हैं। अवामी मसाइल का हल करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दे रहे हैं। EV बसें अब सिंध में तैयार होंगी। इलेक्ट्रिक बसें बनाने के लिए प्लांट्स लगेंगे। बड़े बड़ी स्कीम्स हैं, उसमें बहुत सारे इस तरह के इशूज़ आते हैं। हुकूमत सिंध की ये प्रायोरिटी है, जो भी अवामी मसाइल हैं उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे हल करें। ट्रांसपोर्ट के और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है और बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुंच जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी लीडरशिप के अहकामात पर आवाम को सहूलियत देने के लिए कोशिश कर रहा है। सिंध में जो है वो EV बसेस और नॉर्मल बसेस बना करेंगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगेंगे। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक पहिया जो है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगें। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की, हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत है। जो चीज़ उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए एक कले का किरदार अदा कर रहा है। हमारा मुल्क मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं। बानी ने खुद भी कहा कि मुल्क भी हमारा, फ़ौज भी हमारी। पार्टी बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और जो सऊदीया का दिफा जितना मजबूत और जिस चीज़ पे उनका इंटरेस्ट हो, तो हमने हमेशा से सऊदीया को सपोर्ट किया है। वो चीज़ पूरे उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान तो सारे उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान एक कला की तरह किरदार अदा करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क आइन की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए खान साहब ने हमेशा कहा है। हम खान साहब ने कहा है मुल्क भी हमारा, फ़ौज भी हमारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा ये कहे। हमारे मर्जी से नहीं, पार्टी जो मौक़िफ़ देती है वो हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है, खान साहब की डायरेक्शन आ जाती है और हम जो भी सियासी एक्टिविटी करते हैं वो हमेशा से खान साहब बताते हैं और हम उसका फॉर्मल अनाउंस करते हैं। बाकी तो देखो ना, सोशल मीडिया में कुछ हमारे होंगे लेकिन बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, लोग हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम है उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं हो।
कराची के इलाके मुबीना टाउन में खातून डॉक्टर का पुरस्रार तौर पर लापता होने का मामला। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि खातून ने शौहर से झगड़े के बाद दिल बर्दाश्ता होकर नाले में छलांग लगाई। 4 रोज गुजर जाने के बाद भी खातून की लाश नहीं मिल सकी है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर। मुबीना टाउन के इलाके से खातून डॉक्टर जो हैं वो लापता हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर पता चला था कि इसी नाले में जो है उन्होंने अपने शौहर से झगड़े के बाद जो है छलांग लगाई थी, जिसके बाद वो यहाँ से लापता हुई हैं। छलांग लगाने के बाद पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू इदारे और पुलिस ने 4 दिन तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, लेकिन उन खातून का जो है डॉक्टर का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद अब ये शोबा भी जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि खातून डॉक्टर छलांग लगाने के बाद बच गई हों और वो यहाँ से चली गई हूँ। पुलिस ने डॉक्टर के जो हस्बैंड हैं उसको हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं से जांच की जा रही है। खातून का जो डॉक्टर का मोबाइल है वो तहवील में ले लिया गया है। ताहम जो खातून डॉक्टर जो हैं उनके हस्बैंड हैं उनसे भी तहकीकात जो है वो की जा रही है। इब्तदाई तौर पर उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो खातून डॉक्टर हैं उन्हें तलाश किया जाए। ताहम अब तक उनका कुछ पता नहीं चला है। इस नाले से उन्होंने छलांग लगाई थी और पुलिस को इतला दी गई थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। तकरीबन 4 रोज से जायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अब तक खातून डॉक्टर का कुछ पता नहीं चला है और हुकाम का कहना है कि उनकी तलाश की जा रही है और कोशिश की जाएगी कि केस जो है वो जल्द अज जल्द ट्रेस कर लिया जाए। जी।